नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अल्लू अर्जुन को कल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उनकी रिहाई हो चुकी है। वो अब बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के साथ साथ उन्होंने अपने फैंस से बातचीत भी की और साथ ही उन्होंने दुख भी जताया जो हादसा हुआ था और कहा कि हर संभव पूरी मदद मैं करूंगा कि इसकी जांच आगे बढ़ सके। रिहाई के बाद अल्लू अर्जुन ने फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा, फैंस के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। जो हुआ उसके लिए माफी मांगता हूं। हादसा दुखद था, मैं जांच में सहयोग करूंगा। वहीं बता दें कि पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार भी अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मां ने नजर उतारी जब वो बाहर आए, जब उनकी रिहाई हुई और जेल से रिहाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अल्लू अर्जुन घर पहुंच चुके हैं। वहीं परिवार से मुलाकात भी की और हादसे पर उन्होंने दुख भी जताया कि यह हादसा दुखद था और जांच में पूरी वो सहयोग करेंगे। कल गिरफ्तारी की तस्वीर सामने आई थी जब वो गिरफ्तार किए गए थे और उनकी रिहाई के बाद से ये तस्वीर फिर से। I'm very humble, and I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. Went to watch a movie and due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person, and we're always very sorry for whatever's genuinely happened, and it's purely out of my personal control, and I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I'd like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए, अंदर के प्रति ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. Thank you. No, nothing. I like to thank everybody. I'd like to thank everybody for the love and support. Thank you. No, when the law is when the law is taking care of itself, then I should not indulge with the case and hamper the case. Then I'm not just from a legal standpoint, then I'm not. Thank you very much. Thank you for all your love and support. Do you believe justice will take its course? Yes, I believe in this law. I believe the law. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా మీ తండ్రి గారికి భరోసా చెప్తూ వెళ్ళారు. అంటే ఈ వయసులోనే మీ తండ్రి గారు ఎంత అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నటువంటి మీరు Definitely, it's a very challenging situation for the family. It's a very challenging situation for the family, and I just thank you for all your love and prayers for everybody, from all the fans across and for all the people across. Thank you so much. Thank you so much. Once again, thank you for all your love and support. ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. Thank you for each and everyone across all over. Thank you for your love. I am here today like this because of your love. Thank you. लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को पेश होगा, लेकिन उससे पहले आरजेडी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इसको लेकर के पटना की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे ये पोस्टर लगा करके सरकार से सवाल पूछा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल खड़ा किया गया है, विरोध दर्ज कराया गया है। पोस्टर पर लिखा है, वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। इसके लिए केंद्र की सरकार क्यों कुछ नहीं करती है? जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
पोस्टर के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साधने का सिलसिला जारी, और इसी क्रम में आरजेडी दफ्तर के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है जो आरजेडी समर्थक है उन्होंने लगाया है, और इसमें वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, हमारे देश में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहे या नियम क्यों नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन तो पब्लिक सुविधा एक क्यों नहीं, ये कोट करके लिखा गया। और जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव की तस्वीर है, लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर है, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है और जिसके बारे में चर्चा है कि वो सदन के पटल में रखा जा सकता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले ही से सियासत जारी है और आरजेडी ने इस पर कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन आज इस पोस्टर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ज़्यादा वन नेशन वन एजुकेशन की ज़रूरत है, और ये ठीक आरजेडी दफ्तर के बाहर इस पोस्टर को लगाया गया है, और जिसमें नीरज राय, दिवाकर यादव, गणेश कुमार और अरुण कुमार जो आरजेडी के जो पदधारक हैं उन्होंने ये पोस्टर लगाया और इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई। साथ में लालू यादव की जो तस्वीर है उसके ठीक सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का हो संतान या हो भंगे की संतान सबकी शिक्षा एक समान, और ठीक इसके बगल में एक और तस्वीर राबड़ी देवी की तस्वीर लगाई गई है, उसमें वन नेशन वन ट्रीटमेंट यानी कि स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो आरजेडी की तरफ से पोस्टर के जरिए लगाए गए हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल तो खड़े किए ही जा रहे हैं, साथ में उस पर निशाना भी साधा जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। 1991 के बैच के आईपीएस ऑफिसर विनय कुमार अब बिहार के नए डीजीपी बन गए हैं। विनय कुमार की अगर बात करें तो उनके डीजीपी बनने के बाद से खास करके उनके जो घर वाले हैं वो काफ़ी खुश हैं, और विनय कुमार से जुड़ी खास बात यह है कि वैशाली में राजा पाकड़ के रामपुरानी गांव के रहने वाले हैं, और विनय कुमार के डीजीपी बनने से पूरे गांव में खुशी की लहर है। विनय कुमार की मां बताती हैं उन्होंने बचपन में एक बार विनय कुमार को स्कूल जाने के लिए डांटा, उसके बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और बिना किसी ट्यूशन कोचिंग के देश की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया, और आज बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी बन गए हैं। डीजीपी विनय कुमार की मां से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। 2.0 पर जोर शोर से काम चल रहा है। यह नगर निगम कार्यालय है, यहाँ हेल्प डेस्क बनाया गया और लोग यहाँ आ रहे हैं आवेदन कर रहे हैं। अब तक 300 भूमिहीनों को चिन्हित किया गया और लगभग 6 एकड़ जमीन जो है वहाँ G+5 भवन बनाया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आए। ये जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 है, इसमें हमारे 4 घटक जो हैं इसमें हैं, जिसमें पहला है BLC, जिसमें कि जो हमारे गरीब लाभुक हैं उसको योजना का लाभ मिलती है। और हमारा जो ये योजना है, जो पुराना योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0, वो दिसंबर 2024 में ख़त्म हो रही है। और नगर निगम कटिहार के द्वारा पिछले 1 साल पहले विभाग को 3026 आवेदन लगभग भेजा गया था, और ये योजना चेंज होने के बाद इसमें कुछ अमाउंट की भी बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 2 लाख रुपये मिलते थे 4 किस्त में, वो अभी 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपये लाभुक को नए किस्त में नए योजना में दी जाएगी। और इसका भी सर्वेक्षण के लिए विभाग के द्वारा पत्र आया था। 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच को इस योजना का सर्वे कराना था, जिसमें हम लोगों ने 901 नए लाभुक को 3026 में से चिन्हित करके भेजे हैं। बाकी पे भी काम जारी है। और नए जो योजना है इसमें हमारे पोर्टल ऑनलाइन हो चुकी है। इसमें विभाग के द्वारा सेंसन की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है, पोर्टल खुले हो गए हैं। और सारे लाभुक हमारे जो नगर निगम में है, हमने बोर्ड भी लगवाया है, QR कोड भी उसमें डाला है, और हेल्प डेस्क भी हमने लगवाया है। तो कहीं जो भी लाभुक को कोई भी परेशानी है वो हेल्प डेस्क में भी आकर। प्रधानमंत्री आवास शाखा से जो जुड़े हुए लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसकी भूमि जो सर्वेक्षण है उसका भी काम चल रहा है और लाभुकों का भी पहचान हो रहा है, और जल्द लोगों को इसका लाभ दिखने लगेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो देखिए, कटिहार के लोगों के लिए अच्छी बात है कि जो पीएम आवास योजना के योग्य लाभार्थी है उनके लिए राशि जो है अब 2 लाख से 2.5 लाख कर दी गई है, यानी कि अब उन्हें आवास में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम बात कर रहे थे विनय कुमार की। विनय कुमार जो अब नए डीजीपी बिहार के बने हैं और पुलिस मुखिया है, और उनके खास करके गांव वैशाली के राजा पाकड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर खुशी का माहौल है। और ख़ास करके उनकी माँ बेहद उत्साहित है और कह रही है कि माँ ने कहा है कि हमने एक बार उन्हें डांटा था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं, आगे बढ़ते चले गए और आज जो इतने बड़े अधिकारी बन गए हैं। हम अभी मौजूद हैं बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के गांव में। ये वैशाली
ज़िले में पड़ता है और ये रामपुरानी गांव है जहां पे उनका घर है। और इस घर पे विनय कुमार जो पुलिस महानिदेशक बने हैं उनकी बूढ़ी माँ रहती हैं और बाकी लोग उनके साथ ही रहते हैं। तो हम उनके गांव पहुंचे और आपको हम विनय कुमार जी का घर दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसी उनकी जर्नी रही है, कैसे उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। तो ये देखिए, ये विनय कुमार घर है और इसी घर से, इस छोटे से गांव में एक छोटा सा घर है उनका, और इसी घर से विनय कुमार जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, पढ़ाई की शुरुआत की थी। यहाँ पे शिक्षा दीक्षा लेने के बाद वो उन्होंने इंजीनियरिंग की खड़गपुर से, और खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद वो IPS बने। 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं और ये उनका छोटा सा घर है। इस घर में उनकी एक माँ रहती हैं, वो यहाँ आते जाते भी रहते हैं और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो थी वो इसी इलाके के स्कूल सरकारी विद्यालय से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। विनय कुमार कई जिलों में SP रहे हैं। 33 साल के करियर में उन्होंने कई जिलों की कमान संभाली और ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से एक अलग पहचान उन्होंने अपनी बनाई थी। और देखिए, ये उनकी माँ है, विनय कुमार जी की माँ है। 4 बहन और एक भाई विनय कुमार जी हैं। इनकी माँ है, इनसे बात करेंगे कैसा उनका रहा था, कब इनको जानकारी मिली, क्या कैसे जानकारी मिली? हमरा जानकारी 3 दिन पहले मिलल जी। हाँ, जे बिहान परसों में DGP होए वाला हतन बउआ जी। अच्छा। तो हम खुशी भे गेली जी। बाकी अब फिर तनिक हमरा रहे अथी भेल, जब जे काल है जब जे बन गेला ना जी, तो हम बड़ा खुश हो गेली। अच्छा। हाँ बात भेल है उनसे? हाँ, बात भेल। फोन कर रही? हाँ, का कहलन? हमो फोन कैलन हम। अच्छा। आशीर्वाद दिलियन हम, गोर लगलन हम। कल हो आशीर्वाद दिलियन है जे पढ़ाई लिखाई उनकर यहीं से भेल रही? हाँ, एगो ट्यूशनो न पढ़लियन। हाँ, कुछो ना, एगो कोचिंग जे होइ छै। अच्छा। कुछो ना, अपने से पढ़ कर आ कहबो करियन जे कोचिंग एगो रहथिन मास्टर यहाँ के भथाही के ना हो, तो वो कहलथिन कि जे हम बउआ के कोच, तो कहलथिन जे जब हम हुआ जाए बैनाथपुर अतेक दूर से हम बाबा से पूछ लेब तो हम अपने अथी कतना दिन बाबा कहलथिन हाँ, बाबे से पूछ कर अब अपन कोचिंग न गेलन, जे भेलन क्वेश्चन से वही बता देलथिन, पढ़लन। ट्यूशन फ्यूशन कुछ न पढ़। पहले बचपन में तनी गो रहत ना, तो हमरे एगो देव रहथिन से पढ़ावे ला ले जाइत रहथिन। तो वो 8 दिन ओकरा पढ़लथिन तो कहथिन हे न पढ़तौ, एगो कखरो न अबै छै। हम कहलिए कि बेटी से जाइत रहे स्कूल, तो कहलिए कि जे गे बउआ के ले जो, कम से कम तो स्कूल तो बैठत ना, तो अभ्यास होता है। अब वो कहलकै जे बउआ चल, तो वो कहलथिन हम जेबे न करब, न जब कि न जबहो। तो देख 2 बेर कह दिलियो, तेसरा बेर हम न अब कहबो। बस तेसरा बेर डांट का अथी कह दिलियो। वो दिन से हमरा कहियो फिर कहे के न पड़ल, जरूरत नहीं पड़ा, न कहियो न जरूरत। एक दिन इतना वर्षा बरसैत रहे, इतना वर्षा बरसैत रहे से हम कहली कि जे बउआ रे से आई कोचिंग न जैते रह तो ठीक रहल। तो कहे तू तो एके बेर हमरा मना कर देले, हम जब कोचिंग जाबे करो। हाँ, चल गए। DGP की माँ जो थी उनसे भी हमने बात की और उन्होंने स्पष्ट तौर पे उनके बचपन की यादों को न्यूज़ 18 से साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह पढ़ाई लिखाई में वो किस तरह उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और बिहार में आने वाले समय में 2 साल के लिए उन्हें यह जिम्मेवारी दी गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव जो है जो विनय कुमार पुलिस महानिदेशक हैं वो करते हैं। फिलहाल उनके DGP बन जाने से वैशाली के इस गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है और उनकी मां भी काफ़ी खुश हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। तो देखिए, विनय कुमार की मां तो तारीफ कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो खास करके गांव के लोग हैं वो भी काफी उत्साहित और कह रहे हैं कि गांव से जुड़े हुए विनय कुमार है, लोगों से जुड़े हुए हैं और हमसे बातचीत भी वो करते हैं और हमारे सुख दुख का वो हिस्सा भी बनते हैं। 2 महीना पहले आए थे, बातचीत होती है उनसे? क्या बोलते हैं? बोलते हैं सही है। हाँ, हाँ, एकदम सही है। अच्छा, मोटिवेशन मिलता है, सबको मिलता है। अच्छा, कि वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो बनने का है सपना आगे कुछ, IPS IAS वगैरह? अब आगे का अभी तो हम दूसरा लाइन में BCA में है। अच्छा, भ्रष्टाचार और अथी क्राइम के लिए मतलब हमेशा अथी रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लग रहा है कि क्राइम कंट्रोल होगा? हाँ, क्राइम तो कंट्रोल होगा।
हाँ, सब खुश है, जितने बच्चे हैं सबसे आते हैं, मिलते हैं। और देखिए आज किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और बता दें कि लगातार किसानों की अपनी मांग को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे। खबर है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की ये मांग कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ ये कूच करेंगे और शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली कुछ किसान आज करने वाले हैं और इसको लेकर के दिल्ली प्रशासन की अगर बात करें तो मुस्तैद है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ ये किसान कूच करेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी की इनकी मांग जारी है। दिल्ली कूच पर घमासान जारी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर घमासान जारी है। किसान दिल्ली कूच से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने ऐलान किया कि शनिवार को शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर दोपहर 12 बजे रवाना होगा। पंधेर ने कहा कि आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 18 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ हमलावर रुख अपना रही है और सरकार डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। और देखिए, जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत का समाचार प्राप्त हो रहा, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है वह। अंबाला के एसपी ने किसानों से अपील की है कि किसानों के पास अगर दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति है तभी जाए। अगर वो परमिशन नहीं दिखाएंगे तो बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं अंबाला के डीसी ने संगरूर के डीसी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि बॉर्डर पर ऐसे इंतजाम होने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अंबाला डीसी ने संगरूर के डीसी से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल मदद मुहैया कराने की भी मांग की है। ये मेरी पुनः आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील है कि कृपया जो कानून में प्रोविजन है और उसकी पालना करें और परमिशन लें और प्रोटेस्ट करें। उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये जैसा आप जानते हैं, ये मैटर जो NH-44 को रास्ता खोलने के संबंध में ऑलरेडी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 24 जुलाई से का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर कट स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। सर, फूल भी बरसाए पिछली बारी, किसानों को मनाने की कोशिश की, क्योंकि सारे हमारे साथी हैं भाई, तो आइंदा भी जो लॉ अबेडिंग सिटीजन है उन सबके लिए फूल हमेशा तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को बॉर्डर से बलपूर्वक न हटाया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि भले ही किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे ब्लॉक हो गया है, लेकिन हम उन्हें हटाने का आदेश नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि से कहा कि किसानों को समझाने और मनाने की कोशिशें की जाएं, लेकिन उन्हें बलपूर्वक हटाने की कोशिश ना की जाए। कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर कहा कि अगर वो आमरण अनशन कर रहे हैं तो उन्हें खाने के लिए मजबूर न करें, लेकिन उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन करे किसानों से गांधीवादी तरीका अपनाने की सलाह दी है और अस्थायी रूप से विरोध स्थगित करने और राजमार्गों से हटने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर सीतामढ़ी से है, जहां पिछले 1 महीने में 3 जगहों पर मूर्तियों को खंडन करने की कोशिश की गई, जहां पर धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले को लेकर के लोगों में गुस्सा है और लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन को फेल बताया है। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश की गई। सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के भीषा गांव में स्थापित मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा को गुरुवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया और प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की। मामले में डुमरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इधर दूसरी ओर मंदिर के खंडित प्रतिमा को जिला प्रशासन के सहयोग से उसे ठीक करा लिया गया है। आज से मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई है और स्थानीय स्तर पर जो तनाव का माहौल कायम था, प्रशासन ने उसे दूर किया है। ठीक करके हम लोग पूजा कर रहे हैं,
कल जो स्थिति थी उसमें तो विदीर्ण बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी भगवती, जिसमें उनका आँख फोड़ दिया गया था, पूरे मुख का नाक मुख के जितना है आगे का पोर्शन उसको सबको जो है सो कोई करे लोहे या कुछ ऐसे वस्तु से जो है सो उसको माने थोड़ दिया था। भीसा क्षेत्र में स्थानीय मंदिर में लगे दुर्गा माता के प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया है। उसके सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हम लोग वहाँ पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं अभी सभी बिंदुओं पर सूक्ष्मता से जांच चल रही है। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ पर बाउंड्री वॉल पीछे से नहीं किया हुआ है, खाली सा सुनसान सा एरिया है, तो हम लोग हर संभव बिंदु पे जांच करना है अभी फिलहाल। और इस बीच बड़ी खबर है जहां पर दाल लूट मामले में बड़ा खुलासा किया गया। बताया जा रहा है कि 70 लाख की दाल के साथ साथ उस ट्रक को भी जब्त किया गया है। रोहतास से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां उसरी बाजार से 2 ट्रक दाल बरामद किया गया है। छापेमारी में 5 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। अरवल में खपाने की इसकी योजना थी, लेकिन इस दाल लूट मामले में बड़ा खुलासा पुलिस ने किया। 70 लाख की दाल और ट्रक बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इससे जुड़े 5 लोग की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और देखिए, मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। खबर सामने ये आ रही है कि इस पूरे अलग अलग मामलों को लेकर के 276 की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने एक दिन में 276 लोगों को विभिन्न कांडों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1000 लीटर विदेशी शराब और 10,200 लीटर शराब को पकड़ा है। चकिया अनुमंडल अरेराज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में देसी शराब बना रहे 17 शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इस दौरान बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाने वाले औजार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस दौरान 18 शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया है। पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। निर्देशानुसार पिछले 24 घंटों में मोतिहारी जिला अंतर्गत सघन वाहन चेकिंग चलाया गया और इस स्ट्राइक के अंतर्गत जो है करीब 276 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। और ये 276 अपराधी अलग अलग कांडों में फरार चल रहे थे और इसी के साथ करीब 6000 वाहनों को भी चेक किया गया है इस स्ट्राइक के अंतर्गत। इसमें से करीब 100 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है पुलिस के द्वारा। ये मोतिहारी पुलिस की जो है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें कुल 276 अरेस्टिंग और करीब 1000 लीटर शराब बरामद किया गया है और करीब 100 गाड़ियां जब्त की गई हैं। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।